Welcome to next class of Chapter 3 Understanding Quadrilateral. बेटा आज तक आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में कर्व से शुरू किया था. कर्व की डेफिनेशन बताई थी, सिंपल क्लोज्ड कर्व. पॉलीगन बताया था. व्हाट इज अ पॉलीगन? पॉलीगन इज अ many sided closed figure made up entirely of line segment. तो लाइन सेगमेंट से चाहे जितनी मर्जी लाइन सेगमेंट से हम बनाएं, एक क्लोज्ड फिगर जब हम बनाते हैं तो वो पॉलीगन होता है. पॉलीगन की मिनिमम साइड्स होती हैं 3 और मैक्सिमम साइड्स इनफाइनाइट. कोई लिमिट नहीं है पॉलीगन की, कितनी भी साइड्स हो सकती हैं. तो उसी कड़ी में आगे चलते हुए आज हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे. क्वाड्री मीन्स 4. जो क्वाड्री होता है, क्वाड्री का मतलब ही 4 होता है. So what is a quadrilateral? A polygon having 4 sides. Quadrilateral is a polygon having 4 sides. ठीक है? Now what are quadrilaterals? See, this is a polygon having 4 sides. It is closed, so it is a quadrilateral. Of course, we have some special type of quadrilateral also, but quadrilateral has 4 sides. 1, 2, 3, 4. It has 4 angles. 1, 2, 3 and 4. And what is the sum of all angles of the quadrilateral? What is the sum of 4 angles of the quadrilateral? Now because it has 4 sides, so number of triangles formed is n minus 2 and sum of all angles is n minus 2 into 180. So it is, this I have told earlier in previous exercise, how to find sum of all interior angles of a polygon. N minus 2 into 180 degree, because it has 4 sides, so it becomes 4 minus 2 into 180 degree. So sum of all angles of the quadrilateral is 360 degree, 4 sides, 4 angles and 2 diagonals. These are the 2 diagonals. Now we will talk about some special types of quadrilateral. Parallelogram, kite, parallelogram, rectangle, square, rhombus, all these are special type of quadrilateral. पहले बेटा पैरेललोग्राम के बारे में आपको बता देते हैं. पैरेललोग्राम क्या होता है? As the name suggests, parallelogram means something to do with parallel. Parallelogram इसका मतलब जिसमें कुछ पैरेलल हो. अब क्या पैरेलल हो? How many sides a parallelogram has? 4 sides. Now in a parallelogram, the opposite sides are parallel. See, arrow indicates parallel. This side is parallel to this side and this side is parallel to this side. It's a quadrilateral, 4-sided figure, but it's a special quadrilateral because it has got 2 pairs of opposite sides parallel. Of course, 4 angles. This angle, this and this. Now what's special about parallelogram is that opposite angles are equal. Which are opposite angle? ये इसका opposite है और इसका opposite ये वाला है. इसको नाम दे देते हैं ABCD. अब parallelogram को short में हम ऐसे लिख लेते हैं. Parallelogram में क्या होगा? Opposite sides are parallel. AD is parallel to BC and AB is parallel to CD. गलती से यहाँ लिख दिया AD is equal to BD, but AD is equal to BD तो नहीं हो सकता because AD and BD are adjacent sides. Actually it should be AD is equal to BC. ठीक है? Opposite sides are equal, so AD is equal to BC. AD is not equal to BD. This is about sides. Opposite sides are equal, opposite sides are parallel. Now about angles, opposite angles are equal. Angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. Now one more thing, that these are adjacent angles. A is adjacent to B, B is adjacent to C, C to D and D to A. Opposite angles are supplementary. Why they are supplementary? Because these are parallel lines. This is transversal. What are these angles? These are co-interior angle, consecutive interior angle.
जब पैरेलल लाइन होती है एक ट्रांसवर्सल होता है, ये एंगल जो सेम ट्रांसवर्सल के सेम साइड में अंदर की तरफ आ रहे हैं, इंटीरियर में आ रहे हैं, इनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। एंड बिकॉज ऑफ पैरेलल को इंटीरियर एंगल्स इज 180 degree. Similarly, AB is parallel to CD. This is transversal. B and C are co-interior angles. So B plus C is also 180 degree. C plus D is 180 degree and D plus A is 180 degree. Now this is something about parallelogram. Now I will tell you about the family tree of the quadrilateral. फैमिली ट्री, इसका पूरा फैमिली बनाकर दिखाएंगे, इसकी फैमिली हिस्ट्री बनाएंगे कि क्वाड्रिलेट पैरेललोग्राम कहां से आया और इसकी नेक्स्ट जनरेशंस क्या हैं। एक और चीज, कितने डायगोनल्स हैं? 2 डायगोनल्स। ये 2 डायगोनल्स हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट क्या होता है बेटा? हाफ करना। इंटरसेक्ट होता है काटना, बाइसेक्ट होता है हाफ करना। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर ये एक दूसरे को हाफ ऑफ कर देते हैं। ये देखो BD का BO इज इक्वल टू OD एंड AO इज इक्वल टू OC। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, opposite angles are equal, co-interior angles are supplementary and diagonals bisect each other। इन सब प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे हम इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करने में और एक्सरसाइज को करने में। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, पैरेललोग्राम का फैमिली ट्री बनाकर दिखाते हैं। फैमिली ट्री, इसकी जनरेशंस बनाते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल क्या है? पॉलीगन। ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्रिलेटरल की जो जनरेशंस हैं, हम 2 लेके चलते हैं। 2 बच्चे हैं इसके, एक है ट्रेपीजियम और दूसरा है काइट। तो आज मैं आपको इसकी फैमिली हिस्ट्री और इनकी शेप्स के बारे में बताऊंगी। काइट क्या होता है बेटा? काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल चल रहा है। क्वाड्रिलेटरल क्या है? पॉलीगन। अब क्वाड्रिलेटरल के आगे 2 बच्चे हैं, काइट एंड ट्रेपीजियम। अब काइट की शेप ऐसी होती है, काइट की स्पेशलिटी है कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी। आपको इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये काइट है या नहीं है। देखिए ये काइट है, हाँ है। क्यों है? क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। ट्रेपीजियम, व्हाट इज अ ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम इज आल्सो अ क्वाड्रिलेटरल विद हैविंग एट लीस्ट 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल। सी 1 पेयर इज पैरेलल, सो इट इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ऐसा भी हो सकता है और ट्रेपीजियम ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। क्या बोला मैंने? हैविंग एट लीस्ट 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल। 2 भी हो सकते हैं लेकिन एक तो होगी ही होगी। अब इसमें क्वाड्रिलेटरल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं कि 4 साइड, सम ऑफ 4 एंगल्स इज 360 डिग्री, वो आ जाएगा। ट्रेपीजियम की आगे फैमिली चलती है पैरेललोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन क्या है? आई एम राइटिंग इन शॉर्ट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, एज आई टोल्ड यू, what is parallelogram? A quadrilateral having both pair of opposite sides equal और क्या बताया? पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, और क्या बताया? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके इक्वल, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इतनी प्रॉपर्टीज आपको पैरेललोग्राम की अच्छी तरह से याद करके रखनी है। देखो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी। वो वाली प्रॉपर्टीज तो रहेंगी जो इनके 4 फादर्स में थी और आगे वाली जनरेशन में और प्रॉपर्टीज ऐड हो जाएंगी। तो पैरेललोग्राम हमारे पास एक आ गया जिसकी प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं। अब जो इसकी आगे जनरेशन है उसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो रहेंगी ही रहेंगी,
लेकिन कुछ और अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज भी ऐड हो जाएंगी। पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपीजियम, एटलीस्ट वन साइड पैरेलल, पैरेललोग्राम, सारी प्रॉपर्टीज बताई हैं। अब पैरेललोग्राम के आगे हो गए, वी कैन से दो इसके बच्चे हैं। एक हो गया, हाँ आप सब इसको जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कैसे बनता है? जब हम पैरेललोग्राम का एक एंगल, मान लो ये ऐसा है, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, सीधा कर दूं, ऐसा है ना, इसको अगर मैं ऐसा कर दूंगी तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। एटलीस्ट वन एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ये क्या बन जाता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम वाली हैं, प्लस इसमें जो एडिशनल प्रॉपर्टी है वो क्या है कि एटलीस्ट कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो हो ही, लेकिन साथ में एक एंगल 90 का हो तो रेक्टेंगल बन जाता है। अब आप कहेंगे एक एंगल तो नहीं, इसके तो चारों एंगल 90 के होते हैं। तो बेटा एक एंगल 90 का होगा तो इसका ऑपोजिट है, ये भी 90 का हो गया, ठीक है। और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ये 90 का हो गया, ये ऑपोजिट एंगल है, तो चारों अपने आप हो जाते हैं व्हेन एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री। अच्छा, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसमें है। इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी है वन एंगल 90 डिग्री। और क्या एडिशनल प्रॉपर्टी है इसकी? जो डायगोनल्स होते हैं ना, बाइसेक्ट तो करते ही है क्योंकि पैरेललोग्राम है। और क्या होता है? डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स हमेशा इक्वल लेंथ के होते हैं। AC इज इक्वल टू B। सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी प्लस अपनी दो, एक तो 90 डिग्री का एंगल, दूसरा डायगोनल्स आर इक्वल। इसको बताइए ये क्या है? सबको पसंद है, क्या है ये? काजू की बर्फी। काजू की बर्फी जैसा दिखता है ये क्या है? दिस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, दिस इज कॉल्ड रोम्बस। क्या बोलते हैं इसको? रोम्बस। और रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड्स इक्वल। जब एडजेसेंट साइड इक्वल होंगी तो ऑपोजिट साइड इक्वल होने की वजह से चारों साइड इक्वल हो जाएगी। देखो ये इसकी पड़ोसी साइड है, एडजेसेंट साइड है, ये इक्वल हो गई। अब ये पैरेललोग्राम है तो ये इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। तो रोम्बस में क्या होता है? एडजेसेंट साइड्स इक्वल। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। और इसकी डायगोनल्स की खास बात है कि ये डायगोनल्स इक्वल तो नहीं दिखाई दे रहे होंगे ना आपको, इक्वल होते भी नहीं है, इक्वल नहीं होते, बट दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। एक दूसरे को जब बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे करते हैं, ये पार्ट इसके इक्वल, ये पार्ट इसके इक्वल। वो तो पैरेललोग्राम में भी होता है, बाइसेक्ट करते हैं, बट इसमें क्या होता है? परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब इन दोनों को की प्रॉपर्टीज को अगर हम मिला दें, इसकी और इसकी प्रॉपर्टी को अगर हम मिला दें, तो सबसे दुलारा, सबसे प्यारा इनकी फैमिली का मेंबर है स्क्वायर। कौन है ये? स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है? स्क्वायर पैरेललोग्राम है, साथ में इसमें रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टीज है सारी, रोम्बस की भी सारी प्रॉपर्टीज है। रेक्टेंगल की कौन सी प्रॉपर्टी है? 90 डिग्री एंगल। रोम्बस की कौन सी प्रॉपर्टी है? साइड्स इक्वल। और रेक्टेंगल के डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी है? डायगोनल्स आर इक्वल। और रोम्बस के डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी है? दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा हमारा क्वाड्रिलेटरल है, सबका लाडला। इसमें सभी की क्वालिटीज है, इसकी, इसकी, इसकी। तो ये है लास्ट नंबर स्क्वायर। अगर आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे, साथ में इनकी एडिशनल प्रॉपर्टीज को लर्न कर लेंगे। रोम्बस की क्या बताई थी? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इसका क्या बताया था? एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री एंड यस, ये क्या है? डायगोनल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और स्क्वायर में क्या होगा? डायगोनल्स इक्वल भी होंगे क्योंकि रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होंगे क्योंकि रोम्बस वाली प्रॉपर्टी है। एंगल 90 डिग्री का होगा, ऑल साइड्स इक्वल होंगी। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आपके स्क्वायर में मिल जाती हैं।
अब नेक्स्ट क्लास में हम और आगे चलेंगे, थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पैरेललोग्राम से रिलेटेड, राइट से रिलेटेड और रोम्बस से रिलेटेड, इसकी फैमिली से रिलेटेड आगे की प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 3.3 एंड 3.4 नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.